probably we need to recheck that decision that you're trying to make. So don't be in hurry to conclude the level or startup here. We'll come to that stage. But in terms of plan, in terms of structure, any suggestion, any change, and any view on this, that's important for me, at least in this session. What does the silence mean? Ha, na. It is good for me. Sir, okay with this plan. Okay, so broadly, then I'm taking the others are also comfortable, guys. Last time, in any case, anybody has any thought, want to share anything? So, bataiye, otherwise we'll freeze this and then we'll start running towards this. Sir, just one request, not a suggestion, request. इसके साथ आप थोड़ा एक रिसर्च का भी थोड़ा एक बाद में कभी टाइम मिले तब ऐड कर दीजिएगा. रिसर्च है, so लेवल 3 जो मैंने एनालिसिस बोला, ये रिसर्च ही है पूरा. टेंशन मत, मैंने लिखा नहीं है, तो लेट मी राइट दिस है. ये रिसर्च के साथ ही है, पूरा इक्विटी रिसर्च आपका वो होगा, टेंशन मत लो. और इनफैक्ट हाँ, ऑल्सो अगर मैंने कुछ बैचेस के लिए किया है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वो भी करा सकता हूँ. सो मैंने एक इक्विटी रिसर्च का प्रेजेंटेशन पे भी काम करवाता हूँ. सो अगर आपको उसमें भी जरूरत है, सो एज अ बैच इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो जनरली मैं क्या कराता हूँ कि वी कैन टेक ए स्टार्टअप कंपनी इन दिस एंड अ रनिंग कंपनी इन दिस. सो जो नैन्सी भी बोल रही थी, दोनों फ्लेवर आपको देखने को मिल जाएगा. तो वो भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स, करेक्ट, व्हेन वी रीच टू दैट स्टेज, हाउ मच motivated you want and how much you're trying to get out. Search level 3 में. Anything else, guys? No, sir, comfortable. Okay, so I think this that you're comfortable with this, and this is what we do. So coming back to the our discussion in terms of debt. Yeah, so now let me explain this through an example. So let's take company A, company B. So company A का EBITDA, ठीक है, 100 rupees है. Company B का भी 100 rupees है. And both companies are same. Total difference is company A has equity of that's 100 rupees, and the debt is 0. There's a company B has equity of 50 rupees and debt of 50 rupees at the rate of 10%. The 10% is the interest rate. Yeah, थोड़ा सा let me take these numbers. ठीक है. Now, so इसको भी 1 लाख कर लेते हैं. So ठीक है. So both company का total capital, so total capital is still 1 lakh rupees for both the companies. यहाँ तक कोई डाउट? दोनों कंपनी exactly same है. Only small difference between A and B is that A has no debt and B has some debt on the capital structure. कोई डाउट है तो बताइए. No, sir.
if you're okay with this, then let's complete this. I'm assuming ये आपने KPMG में किया होगा systems में, so but just for my comfort to ensure that you get what I want you to understand, I'm repeating this piece. So now आपका जो interest है यहाँ पे 0 होगा, and company B will have 10% of 50,000 rupees, which is 5,000 rupees, and hence your, or let's start with EBIT direct, okay. And PBT will be 1 lakh minus this, and say यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? guys यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. Sorry. Now next tax rate is 50%. So company A will pay 50% of the PBT, 50,000 rupees, and similarly company B will also pay maybe 47,500 rupees. So hence my PAT is my PBT minus tax. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना था? हाँ जी, कोई डाउट है तो चलिए. Now see this carefully. Both the companies have the same EBIT, but still company A is paying less, company B is paying less tax. So company B is able to save 2,500 rupees. Yes or no? In spite of the fact they have exactly the same profit and they're following the same tax structure. Still, company B is able to save 2,500 in tax. Any doubt in this piece? This is important, guys. Please focus. ज़्यादा कुछ पूछना है? Now, why this company B is able to save this tax? Everything is same except this piece, which means this saving of the tax is because of this interest payment. Yes or no? Yes, sir. Yes. Now, if I ask how much interest company A has paid, 0. Yes, that's right. How much interest company B has paid? That's 5,000 rupees. But this is pre-tax. But actually, because I'm paying 5,000 interest, I'm able to save 2,500. Hence, my net post-tax cost is this minus this benefit because I'm able to save this. Hence, this is called as post-tax cost of debt. A post-tax cost of debt ही करते चलिए. और ऊपर वाला होता है pre-tax cost of debt. देख लीजिए कोई डाउट नहीं है. What is post-tax cost of debt? Post-tax cost of debt means जो आपने actual interest पे किया, उस actual interest में उस interest payment के से जो tax में saving हुआ, उस saving को adjust कर देते हैं. देखिए यहाँ तक कोई डाउट है? So just a question here. The amount is, it is just a mathematical a number adjustment, right? Like how we do in amortization and depreciation. So isn't the 50,000 better? Sorry, नहीं समझ दोबारा बोलो.
Could you repeat your question, please? Yes, sir. The amount, the figure 47,500 is just because of an adjustment in the numbers above, like how we do in depreciation amortization. So isn't that like because of at the end of the P&L that you're creating right now, if this amount was retained earnings, then the amount would be lesser than company A, right? So how, because of the 5,000 that has gone off, so how is this as a tax point better than A? No, sir, I'm not saying this that from this profit perspective, we're talking about this piece. We're talking about this piece, that the company A still has a higher profit and company B still has a lower profit. And if you take this as a retained earning, you're saying if I take that, the company A still is in a better position. That's what you're saying, correct? Hello? There? Yes, sir. So that's what you're saying, Rahul, correct? But I'm not Yes, looking sir. at this flat right now. My question was as a tax level as of now. I'm not saying whether A is better, B is better. That's not what I'm trying to compare from a profit perspective. What I'm trying to compare here is the first simple question. The total tax paid by the company A is 50,000 rupees. The total tax paid by company B is 47,500. In spite of the fact they have the same EBIT level, and they're following the same tax structure, if this company be not saving 2,500 rupees in the tax payment? That's what I'm asking you. Understood, sir. It is saving. It is saving. So if they're saving, now the next question is, why they're able to save this tax? Because if everything is saved between A and B, the only difference between A and B is this interest payment. But बाकी तो सब सेम है ना यहाँ से. See, 5,000 का interest is the only difference between this A and B. और ये difference क्यों आया? Difference यहाँ से आया. So, which means are we comfortable to say कि company B का saving हुआ है? Yes. और company B का ये saving ये interest payment की वजह से हुआ है? Yes, sir. Right, sir. So hence, because I am paying interest of 5K, I am able to save tax of 2.5K. Correct? Yes, sir. अगर ये इंटरेस्ट को मैं जीरो कर दूं यहाँ पे, तो दोनों का टैक्स सेम हो जाएगा? Yes, sir. Yes. यानी 5,000 की वजह से ही वो सेविंग हुआ है. Yes, sir. So is everybody okay with this yellow line? What I've written in yellow, because I'm paying this interest of 5,000. That is the reason I'm able to save this tax. Sanji, yes, no. Yes, sir. Yes, sir. तो सेम लाइक जैसे हम लोग जब भी हम लोग टैक्स फाइल करते हैं, जो हम लोग होम लोन ले रहे हैं, उसमें जैसे हम लोग इंटरेस्ट की वजह से जो टैक्स सेव कर रहे हैं, सेम थिंग यहाँ पे.
करेक्ट, एग्जैक्टली। तो सेम चीज यहाँ पे भी मैं वही बोल रहा हूँ. सो हेंस इफ समबडी आस्क मी what is acha, and also, do we agree that interest is nothing but the cost of debt? Are we agreeing with this statement? Yes, sir. Guys, are you comfortable that interest is cost of debt? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Right? What is cost? Cost is कोई चीज को यूज करने के लिए आप पेमेंट करते हैं, उसका जो एक्सपेंस करते हैं. That's so, अगर मैं किसी से बैंक से मैंने लोन लिया तो बैंक मुझे लोन देगा, लेट्स से 50,000 का, तो मुझे उसको रिटर्न में 55,000 देने पड़ेंगे, 55,000 देने पड़ेंगे. जो 5,000 इंटरेस्ट है वो उसकी कॉस्ट है, बिकॉज उतने पीरियड के लिए बैंक ने मुझे पैसा दिया. करेक्ट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ डेट. डेट को यूज करने के लिए मुझे इतना खर्चा करना पड़ेगा. Is everybody comfortable why interest is being called as cost of debt? Yes, sir. Yes, sir. Yes, no. Yes. Yes, sir. Okay. Now, then if you're comfortable with this, then I can say मेरी जो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट थी, which means the cost of debt जिसमें अभी टैक्स का कोई सेविंग एडजस्टमेंट नहीं हुआ, that is 5,000 rupees. Yes. और इस 5,000 रुपीज में जो मेरी टैक्स की सेविंग हुई थी उसको एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो मेरा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है. Yes, sir. Yes, sir. कर लिया होगा. I'm just trying to understand. This is ये हुआ होगा डिस्कस, करेक्ट. कॉस्ट ऑफ डेट, कंप्यूटेशन, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ये सब करेक्ट. गाइस, हेलो. सर ये प्री एंड पोस्ट ये सब इतना इन डिटेल इतना डिस्कशन नहीं हुआ है. ओके. ठीक है, चलिए. सो फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छा है, मैंने करा दिया. सो देन दिस इज गुड देन. सो लेट्स come to the conclusion of this. So now अगर ये नहीं हुआ है, so let me so एक काम करते हैं, इसको पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को हम के कैपिटल डी लिख देते हैं और प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को हम डिनोट करते हैं के स्मॉल डी से. ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? इसका फॉर्मूला क्या बना? लेट मी एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी फॉर्मूला आपको कोई भी बताता है, चाहे मैं बताता हूँ, कोई भी बताता है, so you need to understand the derivation of that formula. so फॉर्मूला राइट लेना इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला क्यों आया, कैसे उसका कंस्ट्रक्ट क्या है, each piece is what you need to understand, because these are the few pieces that we look at when you go and recruit people, that how fundamentally you understand those derivations of the formula. Because when we move to remodeling,
sometimes we need to adjust or tweak these formulas as well. So unless I understand the derivation of that formula or the construct of that formula, if the deal requires or the situation requires you to tweak that formula, you will not be able to tweak those formulas. So that please ensure कि आप बिना derivation के लॉजिक के कोई भी फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करे, चाहे मैं भी अगर बता रहा हूँ. So please ensure that. So yeah, so effectively this what does this mean? So let's go back to our original example. So original example में हमने क्या किया, अगर हम इस फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं. So मेरा प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, 5,000 रुपीज, करेक्ट. एक केडी हो गया गाइस, यहाँ तक है मम्मी. Yes, sir. इनटू 1 माइनस टी. टी क्या टैक्स रेट. So the answer comes out to be 2,500 और वही आंसर मेरा यहाँ पे आया था. Yes. Correct. That's the one way. अगर बहुत सिंपल, अगर आप मैथमेटिकली दूसरे लॉजिक समझना चाहो तो ये वैसे भी समझ सकते. आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, 5,000 का इंटरेस्ट पे किया. इस 5,000 पे आपने 50% ही तो सेव कर लिया, बिकॉज आपने जो टैक्स लगाया वो टैक्स लगाया यहाँ पे 1 लाख पे और यहाँ पे लगाया 95,000. तो ये 5,000 पे 50% का टैक्स ही तो सेव करा आपने. हाँ ये ना. Yes. Yes, sir. ठीक है. So which is the same thing. So hence my formula becomes, जो मैंने लिखा उसको words में लिख देता हूँ, post tax cost of debt is equal to pre-tax cost of debt into 1 minus tax rate. देख लीजिए यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो. Is any doubt in this? Are we comfortable with this? Yes, sir. So ये जो प्री टैक्स है इसको ऐसे भी लिखते हैं, KD is equal to I into 1 minus T. So I is nothing but interest rate और आपका प्री टैक्स जो होता है is nothing but simple interest. And this is the same formula जो यहाँ पे आपको मिलेगा. So cost of debt is interest into 1 minus tax rate. किसी को कुछ पूछना है तो बताइए यहाँ पे. I've explained you the logic and the derivation of how this formula has been constructed. Any questions, doubt? Let me.
Yeah. So in case, so no questions on this. So we can close this piece. We've discussed hybrid. We've discussed convertibles. Okay. ठीक है. इसका कैलकुलेशन कैसे होता है जब हम डेट और इक्विटी का कंपटीशन करेंगे, तो वहां पे आपको बताऊंगा हाइब्रिड का कंपटीशन कैसे होता है ना. Now with this logic, हाँ जी. Now चलिए. Now I think राहुल ने या I think सिद्धार्थ ने पूछा था कि कंपनी ए बेटर है कंपनी बी बेटर है. करेक्ट. Now which one is better? कंपनी ए कंपनी बी, कौन सी कंपनी बेटर है? Company B. Which company is better? Like, who raised that question earlier? Was it Rahul, Siddharth? Somebody raised this question. Correct? Company A is better vis-a-vis company B. So I raised that question. Yeah, Rahul. So which company is better now? Company B. अरे अभी तो आप ये बोल रहे थे. Sir, one question. Behind. That's why I understood. I said B. Sorry. I understood why it is better. Therefore, I said B now. Why now? Why B is better now? Even after paying a tax, interest on it, has an amount very similar to A, but A doesn't, without having a test of it, can is 50. So at a test, I don't know how much it can go down. That is why. A test? What did that mean? You said something like at a test. The debt. Yeah, so why company B is better? Because they don't have debt. Is that the way you're looking at it? The company, yeah, company A does not have any debt, sir. No. My question is why? Which one is better, A or B? If you're saying B, or you're saying A, why? No, you're not. Now you're saying the company B is better. Why company B is better vis-a-vis A? Okay, sorry, you lost me on the question, sir. Sorry. So which company is better, Rahul, and why? B, because it has a better return of 47,500 even after paying a interest of 5,000 and still saving 2,500 about. Correct, but company A has a return of 50,000.
So if you're looking at the last return component, company A is still earning more than company B. Hello? Yeah, Kapil. Sir, can we include the component that company B uses only 50,000 of its capital, and with the rest 50,000, which is for that, still it's performing better. So can that component be considered in this calculation? The question which you are asking right now. Okay. Now the question is, from whose perspective we need to assess whether it's better or not. If you're looking from an equity investor perspective, looking at equity investor perspective, the equity investor is interested in ROE. Again, I'm assuming ये आप लोगों ने discuss ये ratios वगैरह में करा होगा. So if you're looking at equity investor, ROE किया है आपने ROE ratios के sessions में जो आपके हुए थे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So I will not go into this. So अगर आपने किया है, so ROE में, so it's my PAT which is divided by my equity base. So equity मेरा 1 लाख है, मेरा 50% रिटर्न आ गया. But if I compare this with this, और यहाँ पे इक्विटी 50,000 ही है, तो 95% रिटर्न आ रहा है ROE का. Which one is better? एक इक्विटी इन्वेस्टर है, अगर कंपनी में एम पैसा लगाता है तो उसका रिटर्न 50% आता है. 1 लाख रुपए लगाया, 50% रिटर्न वापस आया. बट कंपनी बी में लगाता है 50,000, तो 95% रिटर्न आ जाता. हाँ जी, which one is better? Company B. B. B से company B. कंपनी बी सर. Okay, so from equity investor perspective, company B is a much better proposition. Vis-a-vis, let's say if you are looking at from a government perspective, because the government will get tax collections. So government के लिए company A अभी भी better है, because उसको tax A से ज़्यादा मिलेगा, B से कम मिलेगा. So that's why you need to understand when you're getting to these questions, and when you need to answer these questions in interview, be very careful in terms of whose perspective you need to assess this. Because depending upon from whose perspective you need to assess, your assessment will change from A to B and B to A. Guys, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, एक question. यस सर. सर, प्रमोटर डेट खुद का यूज कर सकते हैं, मतलब खुद उनके होल्डिंग में से कैन दे रेट डेट बाय फ्रॉम देयर ओन फंड्स? From their own funds तो इक्विटी बोलते हैं ना. नहीं, मतलब सपोज आई एम प्रमोटर ऑफ कंपनी ए, मुझे खुद का पैसा डेट में लगा के करना हो तो कर सकता हूँ, उसमें से नहीं करना. मतलब खुद की कंपनी में खुद को कर्ज देके. ऐसा होता नहीं है. अगर मैं खुद की कंपनी में खुद का पैसा लगाऊंगा तो वो इक्विटी होता है, डेट नहीं बोलते उसको. हाँ, बट एक फिक्स कंपल्सरी इंटरेस्ट इनकम चाहिए होती है, तो वैसे हो सकता है एज पर रूल्स. तो आप क्या करोगे? अगर कंपनी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगी तो खुद की कंपनी खुद को डिफॉल्ट कर दोगे? नहीं सर, वैसा एंगल नहीं, लेकिन उसमें क्या है, जस्ट अलग तरीके से पूछ रहा हूं. उसमें आप खुद का फंड होगा तो आप सेल ज्यादा साइड, मतलब इंटरेस्ट इनकम ज्यादा आएगी. किसको इंटरेस्ट इनकम आएगी? सर वो टैक्स बचाने के लिए वो बोल रहे हैं, वो एंगल से वो बोल रहे हैं. क्या फर्क पड़ेगा? इन्वेस्टर को टैक्स और जो ओनर है उसको तो टैक्स भरना ही पड़ेगा. क्या फर्क पड़ा? वहां टैक्स बचा, बट आपको खुद को टैक्स भरना ही पड़ा. अगर मेरी कंपनी में खुद को लोन दे दूंगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाऊंगा
तो वो इंटरेस्ट मेरी इनकम भी तो हो जाएगी, तो मुझे भी तो टैक्स भरना ही पड़ेगा उस पर। नेट रिजल्ट तो कुछ नहीं आया। नेट तो कपिल मुझे नहीं समझ आ रहा आपका क्वेश्चन क्या है और क्यों क्यों ऐसा कोई करेगा। सर जो रेस्ट 50 फॉर एग्जाम्पल 50,000 डेट है, ठीक है, वो तो उसमें फिक्स इनकम होगी, बाकी का 60% तो इक्विटी में भी शेयर होगा। हाँ, तो ये डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब आपने किसी से पैसा लिया, हम्म, बैंक वो आपको आके दे देगा। ओके सर। तो आप खुद को थोड़ा बैंक कर दोगे। नहीं, वैसे वो एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, शायद रेवेन्यू वाइज सोच रहा हूँ, शायद अरे रेवेन्यू वो एंगल से सोचना पड़ेगा ना कपिल, बिकॉज डेट, आप सिर्फ टैक्स, आप डेट अगर उसको ट्रीट करोगे लीगली, तो डेट में ये पोर्शन भी तो होता है कि अगर वो पेमेंट नहीं करोगे तो बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है। आप अगर मैं उसको डेट ट्रीट करूंगा तो मुझे सारे डेट की रिक्वायरमेंट वहां पे लगानी पड़ेगी ना। आई कांट से कि मैं डेट को सिर्फ टैक्स के लिए देख लेते हैं, बाकी चीजों के लिए नहीं देखेंगे। यस सर। और दूसरा, एज आई टोल्ड यू, कि टैक्स में भी कोई सेविंग नहीं होगी, क्योंकि आप कंपनी का टैक्स बचा लोगे और खुद का टैक्स बढ़ जाएगा आपका। तो इनकम आ जाए वहाँ पे टैक्स कर देंगे। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, टैक्स में भी कुछ एडवांटेज। No, understood, sir. Thank you, sir. My question is कि अगर इंटरेस्ट या डेट इंट्रोड्यूस करना अच्छा है, जैसे कंपनी बी ने किया, तो उस लॉजिक से तो ज्यादा से ज्यादा डेट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कंपनी में। बट द प्रॉब्लम इज, आप जितना डेट कंपनी में लेके आओगे उतना कंपनी की फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है। Yes, sir. एंड जितना ज्यादा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कंपनी की बढ़ जाएगी, कंपनी का बैंक्रप्सी होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। शायद इसीलिए ROE ज्यादा है। हाँ, इसलिए आरओई करना है। एंड हेंस यू नीड टू, व्हेन यू डिसाइडिंग कंपनी को कितना डेट लाना चाहिए, कितना डेट नहीं लाना चाहिए, कंपनी को ये बैलेंस आउट करने की जरूरत है। Right, sir. So when I say balance out, what does it balance out means? Balance out means कि कि 1 लाख रुपीस सारा का सारा यही है। इस केस में क्या होगा, कंपनी सी, इसका बैंक्रप्सी रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ ये ना, कंपनी को थोड़ा सा भी अगर सेल्स ऊपर नीचे हुआ तो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाएगा या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा किसी और से लिया हुआ है। ओनर का तो कोई पैसा है ही नहीं। ओनर का पैसा क्या होता है, ओनर के पैसे पे क्या होता है, ओनर की कोई फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं होती। इक्विटी अगर आपने लिया और आपका बिजनेस एजेड स्वॉट बोला जाता है, विच मीन्स जैसे एक स्वॉर्ड होती है, उसके दो एजेस होते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर बिटवीन दोज टू एजेस तो आपको कट नहीं लगेगा, और जैसे ही आप उन दोनों एजेस के पास जाते हो आपको कट लग जाएगा। सो वन एज इज कि आप डेट नहीं लेते तो आपको प्रॉब्लम है, दूसरा बहुत सारा डेट लेते हो वो दूसरा एज ऑफ द स्वॉर्ड हो गया। तो यू नीड टू बैलेंस और यू नीड टू स्टे बिटवीन दोज सो दैट आपको कट नहीं लगे। एनी डाउट इन दिस स्लाइड?
think about the tax perspective ना, like अगर कंपनी को डेट लेना है तो there are other factors which company will think about it. I mean just because कि इससे थोड़ा सा टैक्स सेविंग है या उस पॉइंट ऑफ व्यू से I don't think they will consider to take debt. I mean No, this is not the motive. हाँ. this is not the only motivation. This is one of those many motivations. Yes. Okay. Okay, because debt to whether they have fund or no, I mean whether the debt is easily available to your business to or no, other factors are also there to consider मैं the तो वो debt. भी बोल रहा हूँ, मान लो डेट, आपको पैसे की जरूरत है और डेट अवेलेबल है, भी बहुत सारा डेट नहीं ले लेना चाहिए. Exactly. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Thank you. Any questions on this? So next slide जो कैलकुलेशन है सेम चीज है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है. ठीक है. सो हाँ, एनी डाउट बिफोर वी गो टू डेट शेड्यूल? अच्छा, इसमें एक चीज की फाइनली अब कितना डेट लेना चाहिए, जो हमें हमें 0 भी नहीं लेना चाहिए और हमें 100% भी नहीं लेना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में कितना लेना चाहिए, ये आपके रेशियोज में डिस्कस हुआ होगा, करेक्ट? जब आपने आरओई और आरओसी वगैरह डिस्कस किया होगा तो वहां पे ये कंपोनेंट डिस्कस हो गया होगा, करेक्ट? कितना डेट लेना, तो हम दोनों दो एक्सट्रीम की बात की कि नहीं लेना चाहिए प्रॉब्लम है, बहुत सारा ले लेना भी प्रॉब्लम है, बट बीच में लेना चाहिए वो हमने डिस्कस किया, बट बीच में कितना लेना चाहिए, this would have been discussed, correct? And when you had those ratio sessions, The debt equity ratio was discussed, and debt it equity. was yeah, and appropriately it should be 1:1. I mean less than 1. That should be less than equity. हाँ, बट कितना डेट लेना चाहिए वो डिस्कस हो गया, करेक्ट? वो रेशियो में आपका. Yes. नहीं, लेकिन सर ऐसे डिस्कस कर कितना लेना चाहिए आप जो बोल रहे हो ना, ये जो अभी मनीषा ने जो बोला रेशो रेशो डिस्कस हुआ है. हाँ, उस रेशियो का एप्लीकेशन यही तो है कि कितना लेना चाहिए, तो वो भी हुआ होगा ना. आई एम कंफ्यूज. तो जैसे रेशियो बताया होगा या रेशियो डिस्कस किया, उसके बाद वो रेशियो से उसका उससे क्या आता है, उससे ये आता है कि हमको कितना डेट लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, वो उससे नहीं आया वहां पे. वो लास्ट पीस वो नहीं खेला. हाँ सर. No, I think it was discussed that debt ratio should be less than equity. I mean, like debt upon equity हम अगर कर रहे हैं, तो the debt ratio should be less than 1 because we are dividing it with equity. चलिए ठीक है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस डिबेट कि किया कि नहीं किया, कुछ बोल रहे किया कुछ नहीं किया. सो ठीक है. सो वो जरूरत अगर आगे पड़ेगा तो देखेंगे. ठीक है. हाँ, कमिंग टू दिस डेट शेड्यूल, प्लीज थोड़ा सा फोकस ऑन दिस. ये मॉडलिंग में आपको चाहिए रहेगा, सो एक्सेल में आपको बनवाऊंगा मैं, बट उसका थ्योरेटिकल वर्जन हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो फॉर एग्जांपल यू टेकन अ लोन और आपको उसका शेड्यूल बनाना है. ठीक है. सो द वे it would work, suppose this is 2000, 2001, 2000, and so on. तो यहाँ मेरा ओपनिंग बैलेंस है, लेट्स assume 1 lakh rupees. So my principal is 1 lakh rupees. My interest, let's assume, is 10% per annum, and my tenure is 5 years, which means I will repay this loan in 5 years. So opening balance अगर मेरा 1 lakh है, मेरा कितना इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा इस पे?
मेरे फर्स्ट ईयर के एंड में मैं प्रिंसिपल रिपेमेंट कितना करूंगा? ठीक है यहाँ तक? So which means my total EMI with this plus this. So my closing balance would be this plus this minus this. देख लीजिए यहाँ तक कोई डाउट है? And any doubt in this? Is everybody comfortable with the first year? Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. So then next year, opening balance becomes the previous year closing balance. Now, similarly, for 2001, again your interest payment, interest accrue amount would be this 10% of the opening balance, but you will still make the principal repayment of this divided by this. Hence your EMI for the next year हाँ जी, किसी को डाउट है ये लोन शेड्यूल में? तो आपका 5 years में लोन रिपेमेंट हो जाएगा, देख लीजिए। एंड आई वुड सजेस्ट आप एक बार आपके पास जो एक्सेल है अगर या पेन एंड पेपर जो भी, एक बार ये कैलकुलेट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पीस है। डाउट है तो पूछिए। सर EMI पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? EMI इज ये टोटल ना। ओके, So this is the same as reducing, right? The reducing. सॉरी, या ये रिड्यूसिंग बैलेंस है। इसमें मैंने क्या किया कि इसमें जो EMI है वो कांस्टेंट नहीं है। दो तरीके के लोन होते हैं, एक में आपके रीपेमेंट अमाउंट कांस्टेंट रहती है, एक में आपकी EMI कांस्टेंट रहती है। मैंने ये जो बनाया ये रीपेमेंट अमाउंट कांस्टेंट किया है। EMI वाला भी बना देता हूँ जिसमें EMI कांस्टेंट करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, देख लीजिए इसमें कोई डाउट है तो दूसरा भी बना दूंगा।
कंप्लीट करिए इसको, कुछ पूछना है तो पूछिए। Is this clear? Are you comfortable with this loan schedule? कुछ पूछना है? This is what is given here. मैंने थोड़ा सा आसान फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया। सबको 5 years में लोन रीपेमेंट होके 0 आना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसी कुछ पूछना है गाइस लास्ट टाइम? एनी क्वेश्चंस आउट इन दिस? Sir, या पूछ। we can calculate interest on compound interest also with form like. हाँ, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट ही होगा ना। सो फॉर एग्जांपल मान लो उसने EMI 30,000 ना पे करके उसने EMI 25,000 पे किया, Okay. तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आ गया ना। क्योंकि जो अब यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है, आपने जब इंटरेस्ट पे नहीं किया, उस इंटरेस्ट के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लग गया। Okay. What is compounding? You pay interest on interest. Yes. ठीक है। Is this clear to everyone, guys? जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है, यस सर। सो वहां पे मैं एक्सेल में फॉर्मूला होता है PMT, शायद मैंने बताया भी था आप लोग को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सेल के जब सेशंस कर रहे थे। अगर नहीं बताते तो ये PMT फॉर्मूला किया था हमने। चलिए, आई थिंक आपको याद भी नहीं है तो ठीक है। सो दोबारा बता रहा हूँ। सो PMT tells you to calculate the loan amount, कितना रीपेमेंट होना चाहिए। ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट मेरा 10% है। ठीक है। NPR कितने
पेमेंट्स करने हैं, 5 पेमेंट्स होंगे। पीवी आज का लोन का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया 26,379.75, ठीक है। ये क्लियर है फॉर्मूला कैसे लगाया मैंने, किसी को कुछ पूछना तो बताइए। सर फिर से करिए ना पहले से, सर फिर से एक बार पहले से करें। हाँ तो कर दिया मैंने स्क्रीन, देखिए क्या पूछना है। फॉर्मूला ओपन करें तो सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं कहाँ पे क्या लगा। सर जो इसका आंसर था 20 minus 26 something, that is the total amount of interest we are paying, isn't it? कुणाल इज दिस ओके, कुछ इसमें और डाउट है? Sorry, Kunal or Kapil, somebody is asking this formula. Then sir, thank you. Okay, so now let's come to this. So इसमें ठीक है, so इसमें again my opening balance is 1 lakh rupees. My interest is 10% into opening balance. Let's freeze the interest rate. ठीक है, यहाँ जो आप EMI पेमेंट कर रहे हो, जो आपकी पेमेंट है ये, ठीक है। So what does this mean now? This means आपने फर्स्ट ईयर कितना EMI पे किया, 26,379.75, जिसमें से 10,000 आपका इंटरेस्ट था। तो आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना किया? $16,379. आपने जो प्रिंसिपल रीपेमेंट किया वो दिस माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस में मैं प्लस लिख रहा हूँ दिस,
So 16379, and hence my closing balance should be opening balance plus प्रिंसिपल रिपेमेंट। देखिए फर्स्ट ईयर में किसी को डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है फर्स्ट ईयर में तो पूछिए। ठीक है, so किसी को डाउट नहीं है। So my next year opening balance becomes this interest becomes this, repayment will always be this, principal repayment and my closing balance is this। ठीक है, कुछ पूछना होता है so, दोनों फॉर्मेट में एंड में 0 आना चाहिए फिफ्थ ईयर के। टिपिकली इंडिया में स्पेशली जो लोन्स आप लोगों ने देखे होंगे रिटेल लेवल पे, जो होम लोन या कार लोन वगैरह, जनरली आप लोगों ने वही शायद देखे होंगे अभी तक। सो जनरली ये स्ट्रक्चर होता है जो सेकंड स्ट्रक्चर होने का। अब आपकी ईएमआई का अमाउंट फिक्स हो जाती है। हाँ जी, कुछ पूछना है इसमें तो पूछे। इस लोन शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको दोनों बना के दिखा दिया। पीएमटी फॉर्मूला भी बता दिया जो इन एक्सेल में कराया था आपको। ठीक है, पॉज है फॉर अ मिनट और सो, प्लीज एब्जॉर्ब कर लीजिए इसको, कुछ पूछना है तो पूछिए। सर 83,620 कैसे है?
Guys, is this clear? Any questions and doubt, please? No, sir. ठीक है, ये सबने नोट कर लिया, सबने बना लिया. यू नीड मोर टाइम टू कंस्ट्रक्ट दिस. ये दोनों आपके पास होना चाहिए, इधर पेन पेपर और थ्रू एक्सेल. आई लीव टू यू, बट ये होना चाहिए. अगर आपने नहीं बनाया, मोर देन हैप्पी टू गिव यू टाइम. ये दोनों आपके पास होने चाहिए कैलकुलेशंस. Is everybody noted down this? Yes, sir. ठीक है. So which means we're done with this as well. So this is called as debt schedule. कि जो डेट की रिपेमेंट होती है उसका शेड्यूल क्या होता है, कैसे कैसे क्या रिपेमेंट होगी. Yes, so that's what we discussed. ये मैंने करा दिया आपको पीएमटी फॉर्मूला. ये सेम फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे किया. Yes. ठीक है, तो इसका जो मैंने पीएमटी फॉर्मूला ही कराया आपको. ठीक है गाइस, चलिए. ये थोड़ा बड़ा पीस है तो ये कल करेंगे, ये आज होगा नहीं. इस पीस को आज खत्म करते हैं, ये थोड़ा छोटा है. सुनो, जो मोड ऑफ रीपेमेंट होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं. एक होता है एन्युटी फिक्स्ड. एन्युटी फिक्स है जो मैंने आपको सेकंड वाला कराया, जहाँ पे आपके रीपेमेंट अमाउंट फिक्स्ड है. सेकंड वाला अगर आप देखेंगे जो मैं ग्रीन में हाईलाइट करता हूँ, ये एन्युटी रीपेमेंट है. आपकी अमाउंट फिक्स्ड रहती है, रीपेमेंट फिक्स्ड रहती है. ठीक है. और जो लास्ट वाला है वेरिएबल, ये फर्स्ट सिनेरियो है. इसमें आपकी रीपेमेंट अमाउंट फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है. हाँ जी गाइस, कोई डाउट? जो यहाँ पे फर्स्ट है वो इस मॉडल में सेकंड है, इस पीपीटी में थर्ड है, वो एक्सेल में फर्स्ट है. Guys, are we okay with this? Any question on this slide पे? ठीक है. देन लास्ट होता है बुलेट रीपेमेंट. वो सिंपल है. बुलेट रीपेमेंट क्या होता है, आपने 5 1 लाख का लोन लिया, 5 ईयर का पीरियड है, तो फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक आप कोई भी प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं करोगे. प्रिंसिपल रिपेमेंट विल हैपन एट द एंड ऑफ द 5th ईयर. तो सारा लोन एक साथ लिया और एक ही बुलेट में आप रिपेमेंट करोगे. द एंटायर पेमेंट विल बी डन इन वन lump sum amount. That's called as bullet loan. So is this everybody, is this 3 types of loans, is it clear to everyone? Yes, sir. चलिए ठीक है. सो इतना रखेंगे बिकॉज जो नेक्स्ट पीस है थोड़ा बड़ा है. आई वांट टू ब्रेक दैट पीस इन 2 पार्ट्स. सो कल स्टार्ट करेंगे, कल ही खत्म करेंगे. सो ठीक है. एनी डाउट गाइस बिफोर वी क्लोज? माय रिक्वेस्ट प्लीज, जो मैंने लोन कंपटीशन कराई, जो कैलकुलेशन कराई है, प्लीज वो आप रिवाइज कर लीजिएगा. वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम जब मॉडलिंग में जाएंगे और कल के सेशन में उसको मुझे बेस बना के आगे कुछ सिखाना है. सो प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा. Last time before we close, any doubt, any questions from what we discussed so far?
So a question. Yeah. It is not with respect to what you taught, just a thought of the mind. Agar ek example, if a startup goes for a variable payment with the same schedule, can it be allowed to pay it in the reverse format, like starting from 2000, the amount paid in 2004 and then go back? Because as the company grows, that amount, it is easier for that company to pay off. Yeah, it's possible. So when I say variable does not mean that it has to go in either direction. The variable could be of both sides, which means it is increasing or decreasing. Both are possible, and both kind of loans happen in the market. Rahul, does this answer your question? Yes, sir. Thank you. Okay. Anybody else, guys? Anything else?